हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर. Till to previous video we studies about the complete chemical properties, physical properties, GMP, etc. of alcohols. Today we consider new topics, second part of this chapter, phenols. Yeah, so let's go start this topics or chapters. यस, सो व्हाट डू यू मीन बाई फिनॉल? फिनॉल्स क्या होते हैं? फिनॉल का बेसिकली मीनिंग होता है, क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या होते हैं फिनॉल्स? फिनॉल्स दीज आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक compounds. So basically we consider if an example of phenol, that means phenols are hydroxy derivative of aromatic hydrocarbons such as benzene. Benzene is the first and the simplest aromatic hydrocarbons. Yeah. So phenol is a hydroxy derivative of aromatic hydrocarbon. यस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सच एज बेंजीन, इनके क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं. हाइड्रोक्सी का मीनिंग होता है इफ वी कंसिडर बेंजीन, सो वन और मोर देन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन्स आर सब्स्टिट्यूट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट मीन्स OH ग्रुप. This is benzene. Hydrogen of benzene is substituted by OH group, then it's formed phenol. This is monohydroxy derivative of aromatic hydrocarbons, that is, this is phenol. Yes, this is benzene, that is aromatic hydrocarbons. This is aromatic hydrocarbons, this is a phenol. So phenols are hydroxy derivative of aromatic carbon. General formula of a phenol or phenol is denoted by AROH. AR, that is aryl group. This is aromatic ring. Yes, AR here aryl ring, aryl group, that means benzene ring. We consider for the benzene ring shortly we wrote AR aryl group. Yes. Now if we consider examples or classification of phenol, so phenol can be classified into three classes on the basis of a number of hydroxy group: monohydroxy, dihydroxy and trihydroxy phenol. Mono, dihydroxy and trihydroxy phenol. Yes, monohydroxy, that means one OH group. Dihydroxy, that means two OH group. कुछ भी पोजीशन हो सकती है टू OH group की. This is known as quinol. Yes. ट्राईहाइड्रोक्सी, डिफर पोजिशन हो सकती है ट्राईहाइड्रोक्सी की. यस, दिस इज नोन एज फ्लोरो pyroglobes. So these are common examples of phenols. Yes, so basically we can consider phenols are for hydroxy derivative of aromatic compounds. Aromatic compounds आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं उसके बारे में. Yes, so now we consider this is basic classification and common introduction. Now we consider nomenclature of phenols.
कॉमन सिस्टम और डेराइव सिस्टम एंड आईपीसी सिस्टम। Just now we consider nomenclature of phenol. Nomenclature of phenol. Common system or derived system. In common system, phenol can be named by we usually use orthometa, para substitute for the or para prefix for the substituent group. If we consider CH3 group as a substituent, then we consider this is a ortho position, this is a meta position, and this is a para position, or to ortho to ortho opposite, and meta to meta opposite, and this is para position. So this is known as metamethyl phenol and methyl phenol. Yes, methyl phenol, or derived name is also known as cresol. So which O and M, so M cresol. यस ये कॉमन नाम है, इसको आपको अलग रखना है। अगर हम इसकी एम की पोजीशन चेंज करते, ऑर्थो पे कर देते, पैरा पे कर देते, तो उसका जो नाम जो होता है उसके अकॉर्डिंग करना हो। कॉमन सिस्टम हम एरोमेटिक कंपाउंड ऑर्थो मेटा पैरा के फॉर्म में नेमिंग करते हैं। सो दिस इज ऑर्थोक्रेसोल और ऑर्थोमेथाइल फिनॉल। अगर पैरा पोजिशन पे होता तो उसको पैरा के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। यस, इफ टू हाइड्रोक्सी ग्रुप इज कंसिडर, अगर तो हाइड्रोक्सी ग्रुप में दे रखे हैं और कहाँ पे है, ऑर्थो पोजिशन पे है, दिस इज नोन एज कॉमनली नोन एज कैटेकॉल। कॉमन नाम में हमें ला रखते हैं, दिस इज नोन एज कैटेकॉल। ये डायरेक्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग है। यहाँ पे ऑर्थोमेटा यूज ना लगे, यस, कॉमन सिस्टम इसके नाम को याद रखना है, कैटेकॉल CH। अगर इसकी पोजीशन को अपन चेंज कर देते हैं, रेसोर्सिनॉल, रेसोर्सिनॉल कॉमन नाम है, आपको ला रखते हैं सिनॉल, रेसोर्सिनॉल। यस, बेसिक के जो कॉमन नाम है इसको आपको ला रखते हैं। या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं,
सॉरी रेसिस्टनॉल, मेटा पोजीशन। एंड हाइड्रोक्सी जो पैरा पोजीशन पे आ जाता है, तो इस केस में इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा क्यूनॉल। ये डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल है, ये मोनोहाइड्रोक्सी, दिस इज डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल। इफ यू कंसिडर ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल, तीनों के दोनों एक ही साथ आ रहे हैं, इसका जो कॉमन नाम होगा पायरोगोल। पायरोगोल बेसिक जो है कॉमन नेम आपको लाने के हैं, ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल। यस, तो इस टाइप से कॉमन नेम सिस्टम जो है हम इसमें ऑर्थोमेटा पैरा के फॉर्म में, कोई सब्स्टिट्यूट पोजीशन है उसको ऑर्थोमेटा पैरा के फॉर्म में लिख सकते हैं। हालांकि इसका भी आप नाम लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ऑर्थोहाइड्रोक्सीफिनॉल के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हो। ऑर्थोमेटा पैरा जो वर्ड होते हैं कॉमनली हम इसकी यूज लेते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं फिनॉल के, उनके लिए। इफ वी कंसिडर नेम आईपीसी नेम, आईपीसी सिस्टम का अकॉर्डिंग नेमिंग जो हम करते हैं, कैसे करते हैं, आईपीसी सिस्टम में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट जो होते हैं इसका यूज़ लेंगे, क्या लेंगे, फिनॉल यूज़ ऐड कर देते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसको कंसिडर करते हैं और इसके सब्स्टिट्यूट की पोजीशन जो होती है उसको लॉक एंड करते हैं, नंबर देते हैं, ऑर्थोमेटा पैरा के फॉर्म में कंसिडर नहीं करते। सच एस हमें ये दे रखा है, पैरेंटल नेम इसका क्या है, फिनॉल है, हमें दे रखा है CH3, तो नंबरिंग अपन वहाँ से करते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उसको लिस्ट नंबर मिले 1 2, तो क्या होगा, इसका आईपीसी नेम होगा 2 मिथाइल फिनॉल। दिस इज 2 मिथाइल फिनॉल। इफ यू कंसिडर चेंज द पोजीशन ऑफ, कॉमन नाम इसका ध्यान रखें, क्रेसॉल होता है। वन टू थ्री फोर मिथाइल फिनॉल, नॉट फॉर पैरा, कॉमन नाम जो है पैरा मिथाइल फिनॉल हम कॉमनली कंसिडर करते हैं। दिस इज अ 4 मिथाइल फिनॉल। अगर हमें यहाँ पे 2 या मोर देन 2 सब्स्टिट्यूट दे रखे हैं, डाईहाइड्रोक्सी दे रखा है, यस, तो अब इस केस में इसका जो नाम लिखेंगे क्या लिखेंगे, 1 4 डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। 2 सेम ग्रुप आ गए तो 1 4 डाई हाइड्रोक्सी, बेंजीन जो है, फिनॉल नहीं बेंजीन यूज लेंगे, यस। या फिर इसको अपन ये बता सकते हैं, सॉरी हाइड्रोक्सी नहीं, बेंजीन 1 4 डाइऑल, बेंजीन 1 4 डाइऑल। हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसका आईपीसी नेम जो होगा, हाइड्रोक्सी कॉमन नेम होता है, ये आईपीसी है, तो बेंजीन 1 4 डाइऑल। वन 2 3 4 5 6 कार्बन, सो नाम क्या रहेगा आईपीसी 1 3 5 ट्राईऑल, और इससे पहले क्या रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे, तो बेंजीन 1 3 5 ट्राईऑल। यस, हमें कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट दे रखा है, कोई नाम दे रखा है, और भी हम कंसिडर कर सकते हैं। हमें सब्स्टिट्यूट में फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, एल्डिहाइड दे रखा है, कॉमन नाम तो इसका सैलिसिलिडाइड है, बट आईपीसी नाम होगा इसका क्या होगा। अब ये नेमिंग जो हम यहाँ से इस कार्बन से करेंगे, बिकॉज ये क्या फंक्शनल ग्रुप के कार्बन जो है वहाँ जो है उसको लिस्ट नंबर के फॉर्म में इसको फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे जो नाम होगा क्या होगा, दिस इज 1 and 2, सो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन हाइड।
2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यस, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नॉट फॉर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यस, इस टाइप से हमें जो है सिंपली बस थोड़ा सा प्रोसेस याद रखना है। नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, बेंजीन और उसके अकॉर्डिंग जो है नेमिंग करते हैं। यस, कोई सब्स्टिट्यूट कैसा है उसको भी हम देखते हैं। सब्स्टिट्यूट की लोकेशन जो होती है उसको देखते हैं, लिस्ट नंबर को फॉलो करते हैं। और 2 एंड मोर देन 2 सब्स्टिट्यूट होते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट ऑर्डर है उसको भी फॉलो करते हैं, जो सिंपल प्रोसेस होता है नॉमेनक्लेचर का। यस, फिलहाल जो इसमें आपको कुछ कॉमन सिस्टम जो होते हैं, कॉमन नेमिंग प्रोसेस है उसको आपको ला रखना जरूरी है। जैसे क्रिस्टोल क्या होता है, यस, ऑर्थोमेटाक्रिस्टोल जो होता है, यूजुअली इस फॉर्म में ऐसे वर्ड्स आपको गिवन हो सकती है, दिए हो सकती है, तो थोड़े से इनके नेम जो है उसको याद रखना है। और ये आईपीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन जो है यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन जो है बेंजीन से रिलेटेड हमें कई बार क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आपको आईपीसी नेम बताना है। ये कंपाउंड दे रखा है, इसका आईपीसी नेम। यस, ये कई बार पूछा। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, बच्चे जो ये मिस्टेक करते हैं इसको पैरेंटल चेन फॉर्म में कंसिडर करते हैं। ये सब्स्टिट्यूट होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको लिस्ट नंबर रूल के फॉर्म में फॉलो करना है। अब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट हो गया, इसको अपन क्या बोलेंगे, फिनाइल के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। बेंजीन जब सब्स्टिट्यूट के फॉर्म आता है उस केस में इसको क्या करते हैं, फिनाइल के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो उसका नाम क्या होगा, 1 2 3 2 पे क्या है, फिनाइल है, तो 2 फिनाइल प्रोपेनॉल। ये ध्यान रखना है। ये सेम का सेम एज इट इज क्वेश्चन कई बार बोर्ड में भी पूछा हुआ है। राइट द आईपीसी नेम ऑफ फॉलोइंग। सो दिस इज 2 फिनाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल। टू फिनाइल प्रोपेनॉल। यस, सेम प्रोसेस है। क्या लिखेंगे, अब 2 पे मिथाइल भी आ रहा है, फिनाइल भी आ रहा है। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको जो पहले कौन आता है, पी आता है, फिनाइल में पीएच होता है, और यहाँ पे क्या आता है, एम आता है। तो फर्स्ट क्या आएगा, एम पहले आएगा, तो 2 मिथाइल 2 फिनाइल, 2 मिथाइल 2 फिनाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल। यस, थोड़ा सा ध्यान रखना इस टाइप की नेमिंग जो है ये एच इट इज क्वेश्चन जो है कई बार पूछा हुआ है। सीबीएसई में पूछा हुआ है, आरबीसी बोर्ड में भी पूछा हुआ है। राइट द आईपीसी नेम ऑफ। हम लोग ये मिस्टेक करते हैं, इनको पैरेंटल चेन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो फंक्शनल ग्रुप में भले एक ही कार्बन हो, वो ही एक पैरेंटल चेन का काम करता है। यस, तो फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर के फॉर्म में और पैरेंटल चेन के फॉर्म में कंसिडर करना जरूरी होता है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तब तो उसको लिस्ट नंबर देना ही है। ये बेसिक जो जनरल थे क्या थे इसके नॉमेनक्लेचर। किसके, फिनॉल के। नाउ वी कंसिडर जीएमपी ऑफ फिनॉल्स, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिनॉल से इसको बनाते कैसे, बनाने में कौन कौन से प्रोसेस यूज लेते हैं, कौन से मेथड से यूज लेते हैं, इसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। यूजुअली अपन फिनॉल है, फिनॉल को क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं फिनॉल को। ये बेसिकली आपको नाम याद रखना है, कार्बोलिक एसिड, नॉट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल इज कॉमनली नोन एज कार्बोलिक एसिड। कॉमन नाम है, ध्यान रखना, कभी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एसिड कहाँ से आ गया, कार्बोलिक एसिड कहाँ आ गया।
कार्बो ऑक्जेलिक एसिड नहीं है, कार्बोलिक एसिड। कभी एक बार पूछ सकते हैं, कॉमन नाम है, ध्यान रखना। फिनॉल को कॉमनली हम या फिनॉल को अपन कार्बोलिक एसिड भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। अब कार्बोलिक एसिड जो है इसको बनाते कैसे, कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट द एनी 1 या 2 मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड। तो हम लोग समझ लेते हैं कि कार्बो ऑक्जेलिक एसिड यस एसिडेट ग्रुप होते हैं, उसको कंसिडर नहीं करना है। ये फिनॉलिक ग्रुप है, फिनॉल ही होता है, इसको कार्बोलिक एसिड है, इसको कह सकते हैं। तो फर्स्ट अपन मेथड ले रहे हैं फिनॉल को बनाने का। किससे बना रहे हैं? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यस, जीएमपी ऑफ फिनॉल फर्स्ट वी कंसिडर फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट अपन अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाते हैं? हम चाहे तो रिएक्शन को डायरेक्टली जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी कंसिडर कर सकते हैं। और हमें कभी एक बार पूछते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बना, तो हमें इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। यस, हम क्या करते हैं, बेंजीन को ओलियम के साथ में रिएक्शन कराते हैं। दिस इज अ बेंजीन। ओलियम क्या होता है? H2SO4 प्लस SO3 का जो मिक्सचर होता है उसको ओलियम बोलते हैं। यूजली क्या लेते हैं? H2H2O7। दिस इज ओलियम। यस, दिस इज ओलियम। तो बेंजीन का हम क्या करते हैं? सल्फोनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SO3 गैस होती है इसकी प्रेजेंस में। इसके मिक्सर को ही सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3 का जो गैस का मिक्सर होता है, दिस इज नॉन एज ओलियम, या फिर शॉर्टली हम उसको ओलियम को इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। यस, हम बेंजीन का क्या करते हैं? सल्फोनेशन करते हैं, तो हमें क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। कभी एक बार पूछ सकते भी ये कैसे बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है मिला कैसे? सो दिस इज अ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यस, सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमने कैसे बनाया है? हमने क्या किया है? बेंजीन को हमने क्या किया है? ओलियम के साथ इसको क्या किया है? हीट किया है। यस, तो हमें क्या मिला? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम क्या करते हैं? फर्दर इसको रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं। किसके साथ में? एक्वस या डाइल्यूट मीडियम ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। यस, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है क्या होता है? NaC सब्स्टिट्यूट होता है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिलेगा। बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का फर्दर हम क्या करते हैं? डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। एक्सेस में इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। यस, सोडियम फिनॉक्साइड का हम क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिड जो होता है एसिडिक मीडियम में उसको क्या करते हैं? डाइल्यूट में सच एस हम HCl कंसिडर करते हैं, या कोई भी डाइल्यूट मीडियम दे रखा है, कभी कभी H+ के फॉर्म में दे रखा है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? फिनॉल। मैं सिर्फ रिएक्शन ही लिखाऊंगा। इतने सारे हमने 2-3 चैप्टर्स कर दिए हैं, इतने सारे हमने पढ़ा तो आपको ये सब कुछ देख के ही बता रहा है। दिस इज अ फिनॉल प्लस के फॉर्म में बाई प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक में कोई कंपल्सरी नहीं होता है, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स होते हैं। कुछ मेरे पास एक्सपर्ट जो होते हैं उनके कमेंट भी आते हैं, उनको ये नहीं पता कि जैसे वाटर या HCl रिलीज़ हो रहा है। हालांकि लिखना चाहिए बट वो माइंड नहीं करता है। अगर आपने यहाँ पे NaCl+ के फॉर्म में बना है तो लिखा तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो रिएक्शन को बैलेंस करना, कुछ एक रिएक्शन होती है जो बैलेंस करना कंपल्सरी होता है, तो यहाँ पे आपको बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनना है? फिनॉल बनना है। अब ये बाई प्रोडक्ट में जो है NaCl बन रहा है, तो सिंपल बात है कि Na और NaCl मिलकर क्या बना रहा है? NaCl ही बन रहा है। यस, बट हमारा मेन पर्पज़ क्या था? फिनॉल ही बनाना था, तो ये हमने बना दिया। यस, सो दिस इज फिनॉल। हमें
टॉपिक जो दे रखा है हमें यूजुअली यहाँ से पूछते हैं कि फिनॉल को कन्वर्ट करना है या फिर इसको कन्वर्ट करना है, किसको करना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को किस में करना है, फिनॉल में। इस टाइप के ये क्वेश्चन जो होते हैं कन्वर्जन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर कन्वर्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बेंजीन टू फिनॉल कन्वर्ट करना, कन्वर्ट द फॉलोइंग बेंजीन टू फिनॉल। तो बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेंजीन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, किसके साथ में हीट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, ओलियम के साथ में, फिर सल्फर एक्व सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। फर्दर हम क्या करते हैं, उसका एक्व सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको लेते हैं या डाइल्यूट फॉर्म लेते हैं, हीट करते हैं, फिनॉक्साइड बनता है, एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है H2SO4 जो होता है। बेसिकली हम कह सकते हैं ये फिनॉक्साइड जो आता है सोडियम फिनॉक्साइड है, इसका अपन एसिडिक मीडियम हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कह सकते करते हैं, या एसिडिक मीडियम इसको ट्रीटेड कराते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। सो दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ये प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे कंडीशन जो अपन अप्लाई करते हैं कुछ ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई यूज लेते हैं। ये जो अपन ने लिया है NaOH लिया है, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर क्योंकि हीट करना होता है, एफिशिएंसी सल्फर की उसकी ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ पे हीट और उसको कंसिडर कर सकते हैं। टेम्परेचर यूज लेते हैं, क्या लेते हैं, 573 to 673 केल्विन टेम्परेचर के बीच में रखते हैं इसको हीट करना होता है। यस नाउ वी कंसिडर सेकंड मेथड। जहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चंस पूछते हैं डायरेक्टली नहीं पूछते, क्वेश्चंस आपको कन्वर्जन के लिए पूछते हैं। फ्रॉम डाइज़ोनियम सॉल्ट, डाइज़ोनियम सॉल्ट से कैसे बनाते हैं ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एल्किल हैलाइड का हम जो चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा कि डाइज़ोनियम सॉल्ट जो होता है कैसे बनता है। यस इसमें अपने कुछ रिएक्शन भी पढ़ी थी, सैंडविच रिएक्शन वगैरह वगैरह जो है। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट को हम क्या करते हैं, वार्म वाटर यानी वाटर स्टीम में वार्म वाटर, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करें यानी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। कौन सा वाटर है, वार्म वाटर, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे वार्म वाटर नहीं दे रखा है, ओनली वाटर दे रखा है, तो उस केस में प्रोडक्ट फिनॉल ना बन के क्या बनता है, बेंजीन बनेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन कराए तो क्या मिलेगा हमें, फिनॉल मिलता है। दिस इज बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट है। दिस इज फिनॉल। देखिए यहाँ पे भी बाई प्रोडक्ट जो है नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, आप लिखो तो ठीक है चलेगा। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें कभी एक बार जो है इसकी रिएक्शन जो है डायरेक्टली ओनली डाइज़ोनियम सॉल्ट को क्या किया है, हाइड्रोलाइसिस किया है। कोल्ड वाटर या हमें वार्म वाटर नहीं दिया है, जब तक ये वर्ड स्टीम या वार्म वाटर नहीं दे रखा है तब तक आपको प्रोडक्ट ही नहीं बनाना है। अगर इसको ही लिया है आपने, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बेंजीन ही बनेगा। अगर मैं ये जब तक ये वर्ड नहीं दिया हुआ है तब तक हमें क्या करना है, डाइज़ोनियम से बेंजीन बनेगा। अगर वार्म वाटर दे रखा है उस केस में फिनॉल बनेगा। यस नेक्स्ट वी कंसीडर बाय decarboxylation of sodium salicylate. सोडियम सैलिसिलेट होता है उसका क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन करना है। डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ CO2। डीकार्बोक्सिलेशन का बेसिकली मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होना, रिमूव होना। यस हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोडियम सैलिसिलेट होता है, जो सैलिसिलिक एसिड होता है उससे क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। फॉर्मूला आपको याद रखना है,
दिस इज सोडियम सैलिसिलेट। यस, सोडियम सैलिसिलेट कंसिडर कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड की फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। यस, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड भी कह सकते हैं। यस, सोडियम सैलिसिलेट, या फिर इसको अपन ये भी कंसिडर कर सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। यस, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसका क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग होता है CO2 का रिमूव करना है। तो हम यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन एजेंट जो होता है उसके लिए क्या कंसिडर करते हैं, सोडा लाइम को कंसिडर करते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, बेसिक आपको याद रखना है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज सोडा लाइम। ये क्या है, सोडा लाइम। ये आपको ला लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, इसका जो मिक्सचर होता है 1:3 की फॉर्म, इसका जो रेशियो होता है, दिस इज नोन एज सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के साथ इसको क्या करते हैं, रिएक्शन कराता है। ये सोडा लाइम जो होता है डीकार्बोक्सिलेशन का काम करता है, CO2 को रिमूव करता है। जहाँ पे भी इस टाइप का कोई एसिड वगैरह दे रखा है, सॉल्ट ऑफ एसिड दे रखा है, यस, उस केस में हम क्या करते हैं, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम इथोक्साइड मिलेगा। सोडियम इथोक्साइड को क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl, या बेसिकली हम क्या सकते हैं एसिडिक मीडियम, उसके साथ में क्या करते हैं, ट्रीटेड कराते हैं, हीट कराते हैं, तो क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा। दिस इज फिनॉल, दिस इज अ फिनॉल। तो हम बता सकते हैं फिनॉल को बनाने का प्रोसेस कैसे बनाते हैं। Next we consider from Grignard reagent. जीर का मीनिंग होता है ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, तो बेसिकली हमें पता है ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीडेशन करना होता है हमें, MgBr, दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रीजन। यस, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या है, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रीजन की फॉर्म में। हमने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन किया। यस, क्या बनेगा, MgBr बनता है। हमेशा MgBr जो होता है इंटरमीडिएट बनता है, इसका अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन में जो भी बनता है इंटरमीडिएट, उसका अपन क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम। क्या बनेगा, दिस इज फिनॉल। यस, दिस इज अ फिनॉल। बाई प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ग्रिग्नार्ड रीजन है, ग्रिग्नार्ड रीजन का हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट जो ऑक्साइड जो मिलेगा, मेटल मैग्नीशियम फिनाइल हैलाइड का जो ऑक्साइड्स होता है। यस, इसको अपन क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड कंसिडर कर सकते हैं। यस, तो फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो होता है, इसका क्या करते हैं, अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं। यस, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिनॉल बनेगा। दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रीजन। यस, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ग्रिग्नार्ड रीजन। ये तो बेसिकली अपन ने क्या किया है। अब हमें फिनॉल को, ये लेबोरेटरी मेथड पे इसको अपन बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, फिनॉल है इसका कॉमर्शियली प्रोडक्शन करना है। कॉमर्शियली प्रोडक्शन का मीनिंग होता है बहुत ही लार्ज स्केल पे इसका क्या करना है,
प्रोडक्शन करना है फिनॉल का, तो उस केस में जो है हम अलग मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ ले सकते हैं। तो कॉमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल, प्रोडक्शन कह सकते हैं, प्रिपरेशन कह सकते हैं, या कॉमर्शियली मेथड ऑफ फिनॉल, जीएमपी ऑफ फिनॉल। कॉमर्शियली प्रोडक्शन करना है तो उसके मेथड्स होते हैं, कौन से होते हैं, क्या होता है, इसको अपन देखते हैं। तो फर्स्ट अपन कॉमर्शियली प्रोडक्शन जो होता है, कॉमर्शियली का मीनिंग होता है लार्ज स्केल पे। कॉमर्शियली मीनिंग होता है ऑन लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा हमें बनाना होता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, कॉमर्शियली प्रोडक्शन उसका करते हैं। यस, तो लार्ज स्केल में फिनॉल बनाना तो हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, कौन सा यूज़ लेते हैं। तो फर्स्ट अपन ले रहे हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यूजली यहाँ पे जो भी हमें क्वेश्चन पूछते हैं इसमें कन्वर्जन के लिए पूछते हैं, या फिर कभी एक बार सीधा ही पूछते हैं कि क्लोरोबेंजीन से कैसे बनता है। एक ही बात है कि कन्वर्जन पूछते हैं या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डॉव प्रोसेस। यस, प्रोसेस का नाम याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, डॉव प्रोसेस बोलते हैं, सॉरी डब्ल्यू। तो डॉव प्रोसेस है, उससे फिनॉल कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो क्लोरोबेंजीन जो होता है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, ऑलरेडी हम पहले ही एल्किल हैलाइड का जो चैप्टर अपने पढ़ा था उसमें हेलो एरिन जो पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था, दोबारा अपन पढ़ देते हैं। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका क्लोरोबेंजीन को पहले तो हम क्या करते हैं, 10% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सर लेते हैं, याद रहे तो ठीक है, 10% एक्वस। यस, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, इसको हमने क्या किया है, क्लोरोबेंजीन के साथ हीट करते हैं। टेम्परेचर यूज लेते हैं, कितना लेते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन, ये ध्यान रखना यहाँ पे कंडीशन स्पेशली, बिकॉज यूजली जो है एटीएम प्रेशर यूज लेते हैं। यूजली होता है क्या है, जो बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच होता है उसका सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होता है, इस वजह से हमने क्या किया है, पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर लिया। यस, तो ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को क्या करते हैं, 623 केल्विन पे इसको हीट करते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और प्रेशर जो रखते हैं, क्या रखते हैं, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं। तो इंटरमीडिएट हमें क्या मिलता है यहाँ पे, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, दिस इज क्लोरोबेंजीन। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड का वही हमारा आगे का प्रोसेस है। फिनॉक्साइड जब होता है उसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द एसिडिक मीडियम। तो हमने इसका क्या किया है, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, डायरो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको ट्रीटेड कराते हैं, तो क्या बनता है, फिनॉल प्लस NaCl। प्रोसेस का नाम है रखना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डॉव प्रोसेस। यस, यूजली यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कन्वर्ट किसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, या क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, इसकी केमिकल इक्वेशन लिखिएगा, बताइएगा। यस, क्लोरोबेंजीन को हम क्या करते हैं, 10% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ में 623 केल्विन से पे हीट करते हैं, और प्रेशर जो रखते हैं, क्या रखते हैं, 300 ATM, क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड इज फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, या H2SO4 भी कंसिडर कर सकते हैं, या एसिडिक मीडियम में हमें हाइड्रोलाइसिस कराना होता है, तो क्या बनता है, फिनॉल में कन्वर्ट होता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डॉव प्रोसेस। सेकेंड फ्रॉम क्यूमेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको आई पिक करिएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा। क्यूमेन होता क्या है, यस, क्यूमेन से फिनॉल कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिनॉल कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ क्यूमेन जो है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, कॉमन नाम है, आईपीसी नाम क्यूमेन नहीं है। यस, ये क्यूमेन है,
इसको अपन आइसो प्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। यस, ये क्या है? क्यूमेन है। क्यूमेन का हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। क्यूमेन का हमें क्या करना था? ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन में करेंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। कहाँ पे ऐड होगा? तो एक्टिव ग्रुप से। यस, इसको क्या बोलेंगे? क्यूमेन हाइड्रोपरऑक्साइड। दिस इज क्यूमेन। क्यूमेन का हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया तो क्या मिला? क्यूमेन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमेन हाइड्रोपरऑक्साइड जो है इसका हम क्या करते हैं? डाइल्यूट मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। दैट मीन्स हम क्या करते हैं? इसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? किसमें कन्वर्ट होता है? दिस इज कन्वर्ट इनटू फिनॉल। दिस इज फिनॉल एंड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा? एसीटोन। दिस इज फिनॉल। यस, नेम याद रखना है। दिस इज क्यूमेन और इसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। क्यूमेन जो होता है क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमेन। तो क्यूमेन का हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है? क्यूमेन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमेन हाइड्रोपरऑक्साइड का हम क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट मीडियम या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं या डाइल्यूट एसिड में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या मिलता है? फिनॉल मिलेगा। यस, ये हम जो मेथड पढ़ रहे हैं कौन से मेथड है? ये कॉमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स है। कॉमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल है। कॉमर्शियली का मीनिंग होता है इंडस्ट्री मेथड, जो लार्ज स्केल पे हमें बनाना होता है फिनॉल। नेक्स्ट वी कंसिडर फ्रॉम बेंजीन। कॉमर्शियल स्केल बेंजीन से कैसे बनाती है फिनॉल को? बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना ये भी एक नैम रिएक्शन है। इसको रसिंग मेथड भी बोलते हैं। यस, दिस इज ऑल्सो नोन एज रसिंग मेथड। बेंजीन से हमें क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं? बेंजीन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में एक्सेस और एयर में रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो बेंजीन है इसके 2 मोल कंसिडर करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एयर का मीनिंग होता है एक्सेस। दिस इज एक्सेस ऑफ एयर, ऑक्सीजन। यस, बेंजीन है। बेंजीन को क्या करते हैं? HCl जो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द एक्सेस ऑफ एयर। और ये ध्यान रखना है हम कैटलिस्ट कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं? क्यूपर क्लोराइड कैटलिस्ट रहते हैं। क्यूपर क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं या फिर FeCl भी हो सकता है। और ये मीडियम कैसा है? कोल्ड। यस, तो क्या बनेगा? फर्स्ट अपन कन्वर्ट करते हैं किसमें? क्लोरोबेंजीन में। बेंजीन को हमने कन्वर्ट किया किसमें? क्लोरोबेंजीन में। क्लोरोबेंजीन के बाद में जो हम इससे पहले अपन एक मेथड अप्लाई किया था, फॉलो किया था, उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। यस, लेकिन हम अगर रशिंग प्रोसेस लिया है तो पार्टिकुलर ही हम प्रोसेस कंसिडर करेंगे। कौन सा है? सिलिकॉन के साथ इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। SiO2 है, SiO2 के साथ इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं इसको। यस, और बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, दैट मीन्स वाटर स्टीम को कंसिडर करते हैं। यस,
बिकॉज यूजली होता क्या है, ये हैलोजन ग्रुप जो होता है, जो भी बेंजीन रिंग के साथ अटैच ग्रुप होता है, वो इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, क्योंकि इनमें पीडीसी होते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, इनकी कुछ ड्रास्टिक कंडीशन, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन को ही अप्लाई करते हैं। यस, तो स्टीम के साथ हमें रिएक्शन कराते थे, हमें क्या मिलता है, दिस इज गिव्स फिनॉल। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रशिंग मेथड। रशिंग मेथड के थ्रू फिनॉल कैसे बनाते हैं, एक बार वापस समझ लो। हम क्या करते हैं, बेंजीन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द एक्सेस ऑफ एयर, और कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या कंसिडर करते हैं, कॉपर कैटलिस्ट, आयरन कैटलिस्ट। कोल्ड मीडियम लेते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। यस, क्लोरोबेंजीन से क्या करता है, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कराना होता है, इजीली नहीं हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, सिलिकेट और वाटर स्टीम में इसको साथ में इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। वाटर स्टीम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तभी जाके स्टीम बनती है। यस, यानी बॉइलिंग सिलिकॉन जो होता है, बॉइलिंग वाटर है, उसके साथ ही इसको क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, उसके इसमें क्या बनता है, फिनॉल में बनता है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रशिंग मेथड या रशिंग प्रोसेस। यस, तो ये जनरल क्या थे, बेसिक मेथड थे किसके, फिनॉल को बनाने की, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यानी जीएमपी ऑफ फिनॉल। यस, तो आज तो हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी जो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ना बोले, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।